This is second lecture of the chapter 13 for class 8, that is chemical effect of electric current. So already you have given the concept of conduction in liquid. So again I would like to repeat. So pure water cannot conduct electricity, but if we put some salt or if we put some ionic compound in water, or you can say impurities, if we put some impurities in water, then that dissolve and produce ions. There are two types of ions, that is positive ions and negative ions, and due to that ions electricity conduct. Okay, so now we'll discuss about electrolytic cell or electrolysis. Okay, electrolytic cell, electrolytic cell or electrolysis. Actually there are two type of cell. Battery, cell means battery. Okay, there are two type of cell. One is electrochemical cell, electrochemical, याद रखना, you will get details in future. Electrochemical cell और एक है electrolytic cell, electrochemical cell आपका सिलेबस में नहीं है, it is not given. Actually electrochemical cell, in electrochemical cell what happen, chemical reactions take place due to conduction of current. Okay, chemical processes take place due to conduction of electric current, due to passing of electric current, and that is also known as electrolysis. And in case of electrochemical cell मैं लिख देता हूँ, electrochemical cell, here what happen, here generally केमिकल रिएक्शन से हम लोग करंट मिलता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इसमें केमिकल रिएक्शंस होगा बैटरी का अंदर, जो हम लोग घर में जो बैटरी यूज करते हैं ना, घर में जो बैटरी यूज करते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो उसका अंदर में क्या होता है, आपका केमिकल रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस का वजह से हम लोग क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है. सो अगेन आई रिपीट, इलेक्ट्रोकेमिकल means inside the battery chemical reactions से आपको करंट मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा. You will get electric current due to chemical reaction, and these chemical reactions happen spontaneously, खुद ब खुद. ठीक है, ऐसा रिएक्शन हम लोग लेते हैं, हाँ, जिसमें हम लोग खुद ब खुद होता है और रिएक्शन से हम लोग क्या मिलता है, करंट मिलता है. हियर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस क्या होता है, वी जस्ट गिव द करंट टू द बैटरी सेल, लोग करंट देते हैं, देन केमिकल रिएक्शंस होता है, chemical reaction. In your syllabus we have to discuss this one only, electrolytic cell, or we can say electrolysis. Okay, now see, suppose we have a arrangement, here we have water plus salt, you can say impurities. Okay, for example sodium chloride, we have sodium chloride. Here we have a plate. This plate is also called electrode.
Okay, electrode. And we have another plate. This plate are made by metal, generally metal. This also electrode. But we have two electrodes. One is, this one is called cathode. Cathode. This one is called anode. Okay. This one is called cathode and this one is called anode. In electrolytic cell, remember in electrolytic cell, cathode is connected to negative terminal of battery and anode is connected to positive terminal of battery. Cathode is connected to negative and anode is connected to positive. This is only due to electrolytic cell, but in electrochemical cell, the concept is just reverse. Okay, in that case, cathode is positive, anode is negative. But in this case, cathode is connected to negative and anode is connected to positive. And what happened now? Here too, along with water, we have ions. We have some positive ions, we have some negative ions. Okay, we have some positive ions, we have some negative ions. So what will happen? So, for example, sodium chloride. Sodium chloride and sodium become sodium plus and chlorine minus, chlorine minus, that is negative ion and this positive ion. This positive ion is also called cation. You have to remember, these things are very, very important. Okay, cation. And this negative ion is called anion. Anions. Positive ions, because in ionic compound, मैंने शायद क्लास 6-7 में जो आप लोग पढ़ रहा था तो बताया था, ionic compound generally क्या होता है, that is made by metal and non-metal. Metal become cation and non-metal become anion. दोनों चिपक जाता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ब्रेकअप होगा, ब्रेक होके एक फॉर्म होगा cation, एक फॉर्म होगा anion. Now see this positive ions and this is cathode is negative. So positive ions किसका बच जाएगा? कैथोड में डिपॉजिट होगा, क्योंकि दिस इज नेगेटिव. नेगेटिव ने किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को अट्रैक्ट होगा. ऑलरेडी यू नो दैट ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपल ईच अदर. सो कैथोड में आपको कैटायन जाएगा और एनोड में क्या जाएगा? नेगेटिव पार्ट जाएगा, मतलब एनायंस कहाँ जाएगा? एनोड में जाएगा. एनोड में एनायंस, कैथोड में कैटायंस. ओके, तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे मान लो कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करके इलेक्ट्रोलाइसिस किया किसका? सोडियम क्लोराइड का. सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस किया बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कैटायन में क्या प्रोड्यूस होगा? कैटायन में प्रोड्यूस होगा सोडियम मेटल एंड एनायन में क्या प्रोड्यूस होगा? आपका क्लोरीन गैस. तो जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशन क्या बताओगे आप? इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो केमिकल रिएक्शंस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, देखना गैस निकालते ही है, गैस का बाबुल निकलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में. कोई ना कोई इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रिक प्लेट, मेटेलिक प्लेट, ठीक है, जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है. बैटरी का दो टर्मिनल होता है, वन इज नेगेटिव टर्मिनल, अदर इज पॉजिटिव टर्मिनल. पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एनोड एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू कैथोड. हियर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा, केमिकल रिएक्शंस होके स्प्लिटिंग होंगे. यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? सोडियम मेटल प्रोड्यूस हो रहा है. इफ वी पुट सोडियम क्लोराइड एज ए सॉल्ट, हम लोग और भी पुट कर सकते हैं, दूसरा भी जिंक सल्फेट पुट कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट पुट कर सकते हैं. So we have so many salt, we have so many ionic compound. So next we have to discuss ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, इसका यूज कहाँ होगा? मैंने पहले भी बताया था, दिस चैप्टर इज वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड इम्पॉर्टेंट. इट इज वास्टली वाइडली यूज्ड इन और industry, widely used in industry. Okay, generally na, except
Remember, try to understand this, very very important. Except gold and platinum, all other metals are not found in free state. ओके, मीनिंग ऑफ फ्री स्टेट मीन्स गोल्ड अगर आप किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता है, गोल्ड प्योर फॉर्म में मिलता है। बाकी मेटल क्या होता है, प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। कॉपर हो गया, कॉपर सल्फेट का फॉर्म में मिलता है। आयरन ऑक्साइड का फॉर्म में मिलता है। बहुत सारा मतलब रिएक्शन होकर मतलब किसी कंपाउंड फॉर्म करके बैठा हुआ है, आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करके बैठा हुआ है। सो जहाँ पे मेटल कोई रिएक्शन करके दूसरा चीज बन के बैठा हुआ है, उसको हम लोग जनरली और बोलते हैं। और O-R-E will get it in class 10 and 12. O-R-E means metals having impurities, that is called ore. But we want to extract, we want to take that metal from that ionic compound. That is called, actually study of that concept is called metallurgy. Okay, so मेटल को सेपरेट करने के लिए हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं। सोडियम मेटल को आगे कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कैथोड में, इन दिस केस। सिमिलरली कॉपर सल्फेट है तो कॉपर प्रोड्यूस होगा, कॉपर सेपरेट हो जाएगा तो उसको हम लोग प्योर कर सकते हैं। तो मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो पहला यूज किया है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। सेकेंड है आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इससे कोरोजन होता है ना कोई मेटल का। जैसे मान लो टीन हो गया, टीन का ऊपर जो टीन चमकता है क्या, टीन तो उससे नहीं चमकता है, और टीन तो कुछ दिन बाद आयरन लग जाएगा। सो आयरन नहीं लगने के लिए, आयरन मतलब लगना मतलब क्या है, कोरोजन होना, कोरोजन। तो कोरोजन को स्टॉप करने के लिए वी generally give a layer of other metal which is not react with water or other substances, and the process of giving a metallic layer to other element or other substance, that is called electroplating. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी तुम्हारा किससे ज्यादा, जैसे ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड हो गया एक मेटल जिसके ऊपर हम लोग दूसरा मेटल का लेयर देना है। तो उस मेटल को हम लोग यहाँ रखेंगे, मतलब आयनिक कंपाउंड का फॉर्म में, वो धीरे धीरे जाके यहाँ पे मतलब डिपोजिट होगा, तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट यूज हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड प्यूरिफाई ऑफ मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट एक्चुअली डिटेल्स पढ़ने से समझ में आएगा, तब भी थोड़ा सा कोशिश करो समझने के लिए। ठीक है, प्यूरिफाई करने के लिए, जैसे मान लो कि एक हो गया कैथोड, एक एनोड हो गया, तो इसमें केमिकल रिएक्शंस होता है। जो एक जो मेटल है, जैसे एनोड हो गया, ये अनप्योर है और ये प्योर है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, गायब होता जाएगा, है ना, छोटा होता जाएगा, और वो मेटल आगे यहाँ पे डिपॉजिट होगा, और ये प्योर है या अनप्योर था। तो इसको समझने के लिए आपको हायर स्टडीज पढ़ना होगा। जितना मैंने मेनली समझा है उसको ठीक करो, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। So in next class, next video, I will discuss the question answer, and if you have some doubt, then you can ask me. Okay? So this chapter was a little bit conceptual, and try to understand line by line, because when you will be in class 10 and 12, you will get a vast concept, because in industry इसका बहुत ज़्यादा यूजेस होता है, बहुत ज़्यादा। आपको तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी तक मिला ही नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ज़्यादा फास्ट है, ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, फाइन।